صدق اللہ مولانا نظیم۔ میں آپ کا سب کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہماری درخواست پر تشریف لائے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کی آمد ہے اور فیصلہ کر دیں گے کہ پاکستان کا مستقبل کس جگہ پر کھڑا ہوگا۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا حق استعمال کریں گے اور بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ ماضی میں جھانکیں گے اور مستقبل کا ایک نقشہ کھینچیں گے، اور انشاءاللہ وہی فیصلہ ہم سب کو قابل قبول ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ میاں نواز شریف، میں، مریم نواز، ہم سب حمزہ شہباز شریف مل کر اس کیمپین کو چاروں طرف لے کر جائیں گے۔ میری نظر میں یہ الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ کیوں؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 2017 میں میاں محمد نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کی شبانہ روز محنت سے پاکستان ترقی کی طرف تیزی سے گامزن تھا، اور دن رات بجلی کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے کام ہو رہا تھا۔ زراعت، صنعت اور حرفت کو ترقی دی جا رہی تھی۔ 20 گھنٹے کے جو اندھیرے تھے ختم ہونے جا رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ 2017 کے اور 2018 کے اوائل میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، اور میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا 2013 میں کہ مجھے نہیں علم کہ یہ لوڈ شیڈنگ کتنی دیر میں ختم ہوگی، لیکن میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اور ہم سب مل کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور ہوا، اور اس کی کمال مہربانی سے 2017-18 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اگر ثاقب نثار جو کہ ایک مورا تھا، اس کے ذریعے نواز شریف حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو آج پاکستان ان شدید معاشی چیلنجز میں گرا نہ ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ اس دور میں زراعت نے بھی ترقی کی، صنعت و حرفت نے ترقی کی، اور ہمارا جو اینول GDP کی گروتھ 6% سے آگے چلی گئی تھی، اور سب اندازے یہ تھے کہ اگلے 5 سال میں میاں نواز شریف پاکستان کو ترقی کے حوالے سے بلندیوں پر لے جائیں گے، مگر ایک سازش ہوئی اور ہر چیز طے و بالا ہو گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ شدید ترین مہنگائی کا طوفان آیا، پھر آپ نے دیکھا کہ IMF سے کیے گئے معاہدے کو توڑا گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سفارتی تعلقات بری طرح مجروح ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر معاشرے میں زہر گھولا گیا اور تقسیم در تقسیم کر دی گئی۔
یہ وہ صورتحال ہے جو کہ 1 یا 2 سال میں ختم نہیں ہوگی، اور ختم ہونے کے لیے بھی شرط اول یہ ہے کہ ہم نفرتوں کو ختم کریں، ہم قوم کو اکٹھا کریں، دلوں کو جوڑیں اور مل کر شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ یہ کام کہنے کو تو آسان ہے، کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن عصر حاضر میں ایک نہیں ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں پر قومیں شکست سے دوچار ہوئیں، شکست و ریخت ہوئی، ان کی تباہی ہوئی، مگر جب انہوں نے ہمت کی تو پھر دوبارہ وہ دنیا کے افق پر پوری آب و تاب سے وہ چمکی۔ تو ہمارے لیے یہ ایک نہ صرف ایک لیسن ہے، ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہمت مت ہارو اور تمام تر مشکلات کے باوجود مایوسی کو قریب نہ پھٹکنے دو اور دن رات محنت کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور دن بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ میرے نزدیک اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے نزدیک 8 فروری کے انتخاب کا نچوڑ، اور اسی سفر کو جس کو 2017 میں ڈنڈے اور بلے سے ختم کر دیا گیا، اس کو دوبارہ شروع کرنا یہ میاں نواز شریف کی سب سے بڑی ان کی خواہش ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا انشاءاللہ تو یہ سفر دوبارہ جاری ہوگا، یہ سفر دوبارہ اس کا آغاز ہوگا۔ لیکن آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ 6-7 سال قوم کے کس طرح برباد کیے گئے، کس طرح ہم معاشی تباہی کے ہم کنارے پر پہنچ گئے، اور بامر مجبوری ہمیں 16 ماہ میں، جو کہ ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، ہم نے دن رات کوشش کی اور مل کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا، وگرنہ آپ یقین کریں کہ پٹرول تیل تو دور کی بات ہے، عوام کو ایک وقت کی روٹی بھی نہ مل پاتی، ادویات نہ مل پاتی، اور کاروبار، صنعت، زراعت سب ختم ہو جاتا، اور لاکھوں لوگ بے روزگار سڑکوں پر ہوتے، اور ہر طرف ایک تباہی کا منظر ہوتا۔ آپ اگر اس کو سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رات کی نیندیں اڑ جائیں۔ یہ اگر صورتحال خدا نخواستہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے بطور وزیر اعظم تم نے کیا خدمت انجام دی، تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ اس کے لیے سیاسی قیمت ہم نے بے پناہ ادا کی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے، میرے قائد کو، میری پارٹی کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ملال نہیں۔ اگر سیاست نہ بچتی اور ریاست بچ گئی تو یہ کوئی قیمت نہیں ہے، ریاست بچ گئی تو سیاست بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گی، اس کا آپ اشاریہ خود آپ اس کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے ابتدائی ایک دور پر یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا جو منشور ہے، مینیفیسٹو ہے، اس کے بارے میں میرے قائد نواز شریف خود آپ کو چند روز میں اس کے بارے میں آگاہ کریں گے، لہذا اس میں جائے بغیر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جس طرح میاں نواز شریف نے اپنے ماضی قریب اور ماضی بعید میں پاکستان کی معیشت کے لیے جو خدمت کی ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں، اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں، فیکٹس یہ ہیں جس کو کوئی بھی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ آج پاکستان کے اندر سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے، وہ ہماری نوجوان نسل ہے۔
पाकिस्तान के पास न तेल है न गैस है. गैस ख़त्म होने की वजह सुई गैस अब उसका बहुत थोड़ा सा उसका डिपॉजिट है और थोड़ी बहुत गैस सिंध में है या केपी में, लेकिन वो ज़खायर जो होने चाहिए वो हमारे पास नहीं. तेल भी हमारे पास नहीं. अरबों डॉलर सर्फ करके हम सालाना इंपोर्ट करते हैं. तो वो कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करवा सकती है? वो है हमारी नौजवान नस्ल. ये जो बल्ज है, यूथ बल्ज, करोड़ों बच्चे और बच्चियां जो इस वक्त 16 साल से लेकर 30 साल की ब्रैकेट में हैं, ये है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, दरख्शंदा मुस्तकबिल. ये है पाकिस्तान का असासा, ये है पाकिस्तान की दौलत. अगर हम उनको इल्म के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करेंगे, उनको जदीद तालीम से हमकिनार करवाएंगे, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग है, चाहे वो मुल्क के अंदर जिस तरह ये अरफा टावर, मैंने कल भी एक अपने इंटरव्यू में कहा, आप देखें अरफा टावर में वो तमाम जो उसकी जितनी भी मंजिलें हैं वहाँ पर आईटी के कंपनीज हैं, 7 यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की पहली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी. इस तरह की एक नहीं दर्जनों यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में बनाना होंगी. इस तरह के सैकड़ों कॉलेजेस पाकिस्तान भर में बनाने होंगे. और स्कूल लेवल पर 8वीं और 9वीं जमात के बाद वो बच्चों का टैलेंट का मेजर करके जो आगे यूनिवर्सिटियों में जाने के काबिल हैं उनको वहाँ भेजा जाए. जो नहीं उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवा कर स्किल्ड डेवलपमेंट उनसे करवाएं. और पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से चंद सालों में जिनके पास तेल की दौलत है या गैस की दौलत है, उससे बढ़कर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल और बावकार तरीके से दुनिया में अपना लोहा मनवा सकेगा. मगर उसके लिए शर्त यह है कि हमारी डायरेक्शन, उसकी सिमत सही हो और उसके लिए तमाम तवानाइयाँ और वसाइल हम उसमें झोंक दें. इसी तरीके से ज़राअत पाकिस्तान की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है. हमने बदकिस्मती से 76 सालों में शुरू के जो 1-2 दिहाइयाँ थी काम हुआ, उसके बाद फिर सब कुछ धरे का धरा रह गया. आज दुनिया के वो ममालिक जो हमसे सीखते थे ज़राअत में, हमसे कहीं आगे चले गए हैं. कुर्ब जवार में, दूर दराज इलाकों में वो ममालिक कॉटन में हमसे आगे चले गए, हमसे गन्ने की फसल में, गंदम की फसल में. यानी उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद उन्होंने जो स्किल्स अपनाई और ज़राअत की पैदावार दुगनी तिगनी कर ली. 4 फसलें एक साल में उन्होंने हासिल की और हम वहीं के वहीं खड़े हैं. ये हैं वो मुख्तसरन जो अहदाफ जिनके ऊपर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह, तो यकीन करें कि बेपनाह उसके समरात होंगे और पाकिस्तान को एक दिन आएगा जल्द कि कशकोल टूट जाएगा इंशाअल्लाह. लेकिन शर्त यह है कि हमारी सिमत दुरुस्त हो, हम लड़ाई झगड़े और नफरत फैलाने के बजाय मोहब्बतें बांटें और अपनी जो हमारी जो इस कौम की जो ज़रूरियात हैं उसके लिए हम जुट जाएं मिलकर. तो मैं समझता हूँ कि ये वो मुख्तसरन एक खाका है जो मैं आपके सामने मैं पेश करना चाहता था. और यूथ के ऊपर, नौजवान नस्ल के ऊपर, ये मैं आज इंतखाब के हवाले से बात नहीं कर रहा. नवाज शरीफ का जो माजी का रिकॉर्ड है उसको सामने रखकर मैं बात कर रहा हूँ. नवाज शरीफ की लीडरशिप में, उनकी वजारत उज़्मा में आप जानते हैं कि लाखों बच्चों और बच्चियों को जो कि इंतहाई ज़हीन और फतीन, मगर उनके माँ बाप के पास वसाइल नहीं थे, अरबों रुपए के तालीमी वज़ाइफ दिए गए. ये बात सामने दीवार पे लिखी है, आप सब जानते हैं. और आज वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन चुके हैं, हजारों लाखों.
नवाज शरीफ की लीडरशिप में आप जानते हैं कि जनूबी पंजाब में बच्चियों को स्कूलों में रिटेन करने के लिए उनके वज़ाइफ बढ़ाए गए, जिसके लिए अरबों रुपए खर्च किए गए। नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी बनाई और गरीब तरीन बच्चों और बच्चियों को उनको मुफ्त वहाँ पर उनको स्किल्स की ट्रेनिंग दी। कोई अगर टेक्सटाइल में जाना चाहता है तो उनको उस कंपनी में भिजवाया, कोई अगर मोटर मैकेनिक बनना चाहता है तो वहाँ भिजवाया, कोई आईटी एक्सपर्ट बनना चाहता है वहाँ भिजवाया, और हजारों लाखों बच्चों को हमने इसमें ट्रेन करके वो कौम के आज अजीम मेहमान बन चुके हैं। नवाज शरीफ के दौर में दानिश स्कूल, आप सब जानते हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। नवाज शरीफ के दौर में लाखों बच्चों और बच्चियों को सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर लैपटॉप्स दिए गए। जो अमीर बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस उनको नहीं, पब्लिक स्कूल्स और पब्लिक कॉलेजेस में जहाँ पर आम आदमी, अजीम पाकिस्तानियों के यतीम बच्चे और गरीब बच्चे जाते हैं, उनको लैपटॉप्स दी गई, अरबों उनके ऊपर खर्च हुआ। ये मैंने चंद मिसालें दी हैं। नवाज शरीफ के दौर में अस्पतालों में मुफ्त इलाज हुआ, मुफ्त अद्वियात मिली, PKLI बना, पूरे पंजाब के अस्पतालों की शक्ल बदल दी गई, गरीब और यतीम और बेवा के लिए इलाज मुफ्त था, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन सब फ्री था, लैब्स बनाई गई, मेडिकल लैब्स पूरे पंजाब में उसका जाल फैलाया गया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। ये है वो रिकॉर्ड जिसकी बुनियाद पर मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये है वो रिकॉर्ड जिसकी बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ कौम से इस कैंपेन में गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे अपना अगला विजन, सोच, किस तरह हमने पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलानी है, किस तरह हमने पाकिस्तान को हमने इंशाअल्लाह अपने पांव पे खड़ा करना है, कब तक हम पाकिस्तान के वकार को मजरू करते रहेंगे, कब तक हम IMF के पास जाते रहेंगे। ये है वो चुपते हुए सवाल जिसका जवाब आपको 8 फरवरी को इस कौम की गयूर अवाम देंगे अपने वोट के जरिए। और अगर मियां नवाज शरीफ को अल्लाह ताला के फजल करम से एक अच्छी मेजॉरिटी मिली तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह वो दिन रात एक कर देंगे और पाकिस्तान की हालत बदलने के लिए, ज़राअत को तरक्की देने के लिए। किसके ज़माने में सस्ती खाद मिलती थी, किसके ज़माने में ट्यूबवेल ज़राअत के लिए उनको सब्सिडाइज बिजली मिलती थी, किसके ज़माने में इस सूबे में ज़रूरी किसान भाइयों के लिए छोटे इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए गए, बेरोज़गार बच्चों और बच्चियों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिले और उनको रोज़गार पर लाया गया। 50,000 गाड़ियाँ नौजवान बच्चों और बच्चियों को दी गई इंटरेस्ट फ्री लोन्स के जरिए। ये हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हकीर खिदमात मियां नवाज शरीफ की इस कौम के लिए। और अब आइंदा चैलेंजेस भी बहुत हमालिया नुमा हैं, उसके लिए वही हमालिया नुमा सोच और विजन होगा और ये कमिटमेंट और ये एक जज्बा दिलों में होगा कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो तकदीर जरूर बदलेगी। अगर हमने माजी करीब की तरह अपना बल्ले से हर चीज़ तय बाला अगर जिस तरह हुई, अगर उसी को हम खुदा न खास्ता उसी में उसका शिकार हो गए तो हर तबाही होगी। लिहाजा नवाज शरीफ का एक सोच है, पुख्ता सोच है बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक सियासतदान के, बतौर एक मुदब्बर के, कि उन्होंने दिलों को जोड़ना है और मुशावरत से मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। मैं इन अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े तहम्मुल से मेरी गुज़ारिशात को सुना। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब आपके सवालात। मेरा सवाल ये है कि उस दौरान 2017 में भी आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपको छोड़ रहे थे, वो साजिश के हिस्सा बने या जो भी। अब फिर आप इलेक्टिबल्स को अपनी टिकट भी दे रहे हैं और जमात में शामिल कर लिया गया है, आपकी हुकूमत बन जाती है। तो जिस तरह से अब आप अपने माजी में अदलिया और दीगर को जो है सुलतकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि इलेक्टिबल्स को शामिल करके आप अपनी जो है वो हिकमत अमली बेहतर नहीं है कि कल को फिर ये छोड़ सकते हैं? देखिए, ये एक सियासी
हिकमत अमली है, हर पार्टी अपना एक प्रोग्राम बनाती है। हमने यहाँ पर आपने देखा कि हफ्तों यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की मीटिंग खुद मियां नवाज शरीफ ने चेयर की। और मैं आपको बिला खौफ तरदीद बता सकता हूँ कि हमने वर्कर्स को भी टिकट दिए हैं और उनको भी टिकट दिए हैं जो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक सियासी हिकमत अमली है। उसका मियां नवाज शरीफ का जो विजन है पाकिस्तान के मुस्तकबिल को किस तरह संवारना है, उस यानी अवाम की ताकत से वो पूरी तरह उस जो हाउस में उनकी जो स्ट्रेंथ होगी उसको वो बरूए कार लाएंगे इस मुल्क की गुर्बत, बेरोजगारी और मसाइल को हल करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, बात करते हैं, अपना मुद्दा बयान करते हैं, अपनी तनकीद करते हैं और लीडरशिप का फ़र्ज़ है कि उनको तहम्मुल से सुने, उनकी बातों को गौर से सुने और फिर जो मुनासिब फैसले वो करे। जिस शख्स की दयानत की और मेहनत की सारे सूबे भी एक मिसाल देते थे, एडमिनिस्ट्रेटर वाइज भी कि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप ये तसलसल जो है लोग मियां शहबाज शरीफ को भी देखना चाहते हैं लीड करते हुए कि वो उसी जिद्दत के साथ लीड करें। और जिन हालात में आपने मुल्क को निकाला, जब आप आए थे वो भी सूरत हमारे सामने है, जब आपने निकाला और उन लोगों को आपने साथ बिठाया जो एक साथ बात नहीं करते थे, आप उनको साथ लेके चले, आपने उनको साथ लेके उनको एतमाद में लिया। तो क्या वो तसलसल जारी रहेगा जिस तरह आप फ्रंट लाइन पे वो तसलसल जारी रखेंगे? बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ साहब पूरी मुशावरत करेंगे और अपने साथियों को साथ लेकर चलेंगे। जो दूसरी पार्टीज हैं उनसे भी मुशावरत की जाएगी। और जिस तरह मैंने कई दफ़ा कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी, मियां नवाज शरीफ उसमें बिलीव करते हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मुशावरत का सिलसिला वसी होगा और उसी के ज़रिए पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी इंशाल्लाह। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर यूथ के लिए आपने अभी ऐलान किया, लेकिन कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इस हवाले से कोई बात नहीं की, वो ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि किस तरह उसको लार्ज स्केल पे हम कर सकते हैं। मैंने मैनिफेस्टो की बात कर दी कि वो मियां नवाज शरीफ साहब जल्द पेश करने वाले हैं और उसकी तफसील आपके सामने आ जाएगी। लेकिन जो उसके जो ब्रॉड जो खद ख्याल है वो मैंने बयान कर दी है कि पाकिस्तान की हमारी जो नौजवान नस्ल है इसके ऊपर हमने अरबों खरबों इन्वेस्ट करने हैं और यही पाकिस्तान का इंशाअल्लाह एक शानदार और बहुत ही चमकता हुआ एक मुस्तकबिल बन जाएगा। ज़राअत हमारी बैकबोन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके ऊपर पूरी हमने तवज्जो देनी है। बाकी तफासील आपके सामने आ जाएंगे। आपने बाकायदा पार्टी को दोबारा वापस लेके आए अपनी सियासत की वजह से, और अगर आप उस वक्त ये सियासत ना करते तो शायद आपकी पार्टी इस जगह पे वापस ना आ पाती। तो क्या आपने अपनी पार्टी को ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि सिर्फ हमने वही पॉलिटिक्स करनी है जो एक्सेप्टेबल है इस मुल्क में? शुक्रिया। आपने देखा 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान में तमाम अपना जो इखलास के साथ पूरी कौम को बताया कि वो वापस आए हैं। तो उनका क्या मकसद है कि टूटे हुए दिलों को जोड़ना, इस मुल्क के अंदर जो जहर घोला गया उसको ख़त्म करना और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करवाना। उसके लिए वो मशावरत के साथ चलेंगे और तमाम जो आइनी इदारे हैं आइन के दायरे में रहते हुए सबसे मशावरत करके वो आगे लेके चलेंगे। ये बात बड़ी वाज़ेह उन्होंने कर दी। डंडा भी नहीं है उनके पास और बल्ला भी ले लिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि वो फिर रुकावट बन सकते हैं आपके लिए? गुजारिश है कि बल्ला क्या मैंने लिया या नवाज शरीफ ने लिया है? पूरी कौम ने देखा, दुनिया ने देखा। 10 घंटे वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव चली। वहां पर सबूत पेश करते जो उनसे मांगे गए। वहां पर वो तमाम जो दलाइल थे वो देते जो उनसे पूछे गए। वहां पर सबूत मैंने तो पेश नहीं करने थे या मियां नवाज शरीफ तो पेश नहीं करने थे। और अगर वो उनको बल्ला मिलता, अपना शेर तो हमारा चुना गया था ना 2018 में, आपको उसको अच्छी तरह इल्म है। लेकिन आज अगर बल्ला उनसे चुना है तो उनका
का उनसे पूछें आप कि आपने ये जब आपको कहा गया 1 साल पहले कि आप अपने इंट्रा पार्टी या जो आपके अंदर दाखिली जो इंतखाबात है वो करवाएं, क्यों नहीं करवाए उन्होंने? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन की सारी जो उन्होंने ज़रूरियात पूरी की? बल्ला अगर होता तो हम अपना शेर बल्ले का मुकाबला करता जिस तरह माजी में करता रहा। अब अगर बल्ला नहीं है उनके अपनी गलती की वजह से, तो उसके कसूरवार हम तो नहीं हैं। 16 माह की पीडीएम हुकूमत थी आपकी, उसमें इल्ज़ाम ये है कि महंगाई का तूफान उस 16 माह में ज़्यादा आया। एक तो सवाल ये है जी, उसका क्या इल्ज़ाम आप कबूल करते हैं या नहीं? दूसरा सवाल ये है जी कि माजी के जो आपके दोस्त थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो आजकल बहुत मोहब्बत के फूल आप पे निछावर कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है जी? देखिए भट्टी साहब, महंगाई जो 2017-18 में थी वो सारे इशारे आपको इल्म है, मैं वक्त नहीं ज़ाया करता, तारीख की सबसे कम सतह पर महंगाई या जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं वो नवाज शरीफ के दौर में थी 3.5%। उसके बाद जब 2018 में एक साजिश के ज़रिए इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया गया, तो आपने देखा उन 4 सालों में क्या हुआ। मैंने बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करना चाहता कि चीनी जो 52 रुपए पे थी वो 100 रुपए को क्रॉस कर गई। जो आटा जो 35 रुपए किलो था वो कहाँ आसमानों से बातें करने लगा। चीनी इन्होंने एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, गंदम एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, डॉलर्स अरबों डॉलर ज़ाया किए, लोगों की जेबों में विंडफॉल प्रॉफिट गए। फिर जो हकायक से मुंह नहीं चुराने चाहिए, आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, ये मैं मानता हूँ, उससे अपने कीमतें ज़रूर बढ़ी, उसका एक फैक्टर है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन IMF के साथ जो मुआहदा था उसको तोड़ दिया और देखा कि शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, तो बगैर किसी बजट के अरबों खरबों उन्होंने ज़ाया कर दिए। तो ये जो मिस मैनेजमेंट थी, जब हमने इक़्तिदार संभाला और 16 पार्टीज़ की 13 पार्टी की एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो दिन रात हमने काफ़ी कोशिशें की, सैलाब से हम नंबरदाज ना हुए, 100 अरब रुपए हमने खर्चे दिन रात में, मारा हर जगह पहुंचा, कोई एहसान नहीं था, मेरा ये फ़र्ज़ था। जो एक माजी की भी जब सैलाब आए पंजाब में, तो आपने देखा है मैं एक हकीर खिदमत करता रहा, IMF का था, महंगाई का था, ये एक बड़े बड़े चैलेंजेस थे जिसको हमने फेस किया। सफारती ताल्लुकात बुरी तरह मजरूह हो गए थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने कर देते। तो महंगाई जो थी, बिल्कुल मैं इससे इंकारी नहीं हूँ, लेकिन क्या ये महंगाई हम जानबूझकर लेके आए? जो माजी से उस PTI की हुकूमत से हमें जो विरसे में मिला, हमने भरपूर कोशिश की, जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। मैंने आपको फिर कहा कि अगर IMF का मुआहदा ना होता, उसकी कड़ी शराइत थी कि बिजली की कीमतें आपको बढ़ानी पड़ेंगी, आपको गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। अगर ये हम ना मानते तो मुआहदा ना होता, आज मुल्क का शराजा खुदा न खास्ता बिखर गया होता माशी लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह ताला ने बड़ा कर्म किया, मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो देखेंगे कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में वही दौर तरक्की और खुशहाली का वापस आएगा। और जो फूलों की बात की आपने, तो फूल जो हैं फूल होते हैं, उसकी खुशबू से पूरा चमन महकता है। सर, एक तो बात यह है कि मुल्की मसाइल बहुत गंभीर हैं, तो अल्लाह के फजल से आप में और मियाँ साहब में ये एबिलिटी तो है कि आप चैलेंजेस को फेस करके उनको सोल्यूशन निकाल लेंगे, मगर क्या ये सादा अक्सरियत से मुमकिन हो पाएगा? और दूसरी बात है कि सियासी मुबसरीन कहते हैं कि शहबाज साहब जो है वो नून लीग की सियासी साख को बचा गए हैं, क्योंकि मुल्क इस वक्त मुज़ाहमत का मुतहम्मिल नहीं है, मुफाहमत का मुतहम्मिल है। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि क्या सादा अक्सरियत से मुमकिन हो पाएगा ये जो आगे आपको अगर गवर्नमेंट मिलती है? देखिए, मैं अर्ज करूँगा, 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ ने अपना विजन दिया और कहा कि माजी की तलखियों को बुलाकर अब हमें सबको मिलकर सफ़र तय करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने की, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये करना चाहता हूँ कि उनके अब
दिलो दिमाग में एक ही बात रच बस गई है कि ये मुल्क बड़ी अजीम कुर्बानियों से मार्ज वजूद में आया है। 76 साल बाद भी आज भी आम आदमी, गरीब, यतीम, बेवा, उनके लिए इलाज, तालीम आज भी एक शजर ममनू जिसे कहते हैं वो है उनके लिए। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। नवाज शरीफ की सोच ये है कि अल्लाह ताला उनको मौका दे तो ये अमीर और गरीब के दरमियान जो खलीज है इसको कम करना है और गरीबों और आम आदमी के लिए ज़िंदगी आसान बनानी है, उनको खुशहाल करना है। आपने कहा नफरत की सियासत को ख़त्म करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में तकरीबन 100 लोग ऐसे थे जो मुल्क की अशराफिया थी जिनको $4 अरब के बिलासूद कर्जे दिए गए थे। उस हवाले से कामिया कमेटी में भी मामला आया था, बड़ा क्रिटिकल मसला था। तो क्या आप इसको मुस्तक़बिल में टेकअप करेंगे, क्योंकि कुछ लोग फ़ायदा उठा जाते हैं और बाकी करोड़ों के अवाम जो मुश्किलात का शिकार होते हैं। दूसरा, इस वक्त माशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि $72 अरब 3 साल में अदा करने हैं पाकिस्तान ने। तो क्या इस पोजीशन के अंदर आप हैं कि आने के बाद ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि $72 अरब अगले 3 साल में अदा कर दें? ये बड़े आपके पर्टिनेंट सवालात हैं, बड़े अच्छे। हमालिया नुमा हमारे चैलेंजेस हैं, उनको उतना बड़ा उनको हल करने के लिए विजन चाहिए और कौमी यकजहती चाहिए और शबाना रोज़ मेहनत चाहिए, क्योंकि ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि बैठे बैठाए कुछ हासिल नहीं होता। आप हिम्मत करते हैं, एफर्ट करते हैं तो अल्लाह ताला मदद करता है। 16 माह आपकी हुकूमत रही, वज़ीर आज़म तो आप थे, लेकिन आपके साथ बाकी कोalition पार्टनर्स भी थे, PDM की जमातें थी। तो अब कितना मुश्किल या आसान होगा वोटर के पास जाकर उन्हें कन्विंस करना कि आप इन मसाइल के ज़िम्मेदार अकेले नहीं हैं और आपके पास उनके मसाइल का अब शाफी इलाज है और अब हालात जो है वो बेहतर होंगे। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैंने अकेले नहीं, 13 जमातों की यानी इज्तिमाई काविश से मैं सबको क्रेडिट देता हूँ। अगर सैलाब से हम दिन रात हमने उसको फेस किया तो मैंने अकेले नहीं, इज्तिमाई 13 जमातों की काविशों से। अगर सफारती ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त ममालिक से, बरादर ममालिक से हमने ठीक किए तो मैंने अकेले नहीं, इज्तिमाई काविशों से। बस ये मैंने 3 मिसालें आपको दे दी हैं, बाकी की बात आप समझ गए। SIFC ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमें मुआशी बहरान से निकाल सकता है और जो एक फैसिलिटेशन सेंटर है, यानी कि जो बाहर से सरमायाकारी आना चाहती है। अगर आपकी हुकूमत आती है तो इस प्लेटफॉर्म को कितना यूज़ करेंगे जो कि हमारे लिए एक बहुत आसानियाँ पैदा कर सकता है? ये प्लेटफॉर्म बाकायदा इसको कानूनी हैसियत मिल गई है और ये एक पार्टनरशिप है हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान। और मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई काविशों से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जिसका नाम SIFC है, आप यकीन करें कि बहुत मुल्क को, पाकिस्तान के अवाम को बेपनाह फ़ायदा हासिल हो सकता है और खुशहाली और तरक्की के सफ़र की तरफ हम बड़ी तेज़ी से रवां दवा हो सकते हैं इंशाअल्लाह। सियासत में गालिम गलोच का कल्चर बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुका है और हमारी यूथ डिट्रैक हो चुकी है, अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है और इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बदकिस्मती से पिछली हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी PTI की और उससे बेपनाह मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि इन इंतखाबात के नतीजे में अपने नौजवानों, बच्चों और बच्चियों के लिए एक शानदार मुस्तकबिल का नक्शा पेश किया और उसके अंदर अमली तौर पर अच्छे रंग भरने की कोशिश की, तो ये यूथ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एसेट बन जाएगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा माहौल बने कि जिसमें नफरतें, गाली गलौज का जो असबाब हैं ख़त्म हो जाएं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मियां नवाज शरीफ इसमें लीड लेंगे। पाकिस्तान के पास CPAC और गवादर जैसे 2 मंसूबे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये समझती है कि ये मंसूबे पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए अहम किरदार अदा कर सकती हैं और आपके मंशूर में ये शामिल है कि उसको चलाया जाएगा और वो वर्किंग में आएंगे? कोई शक नहीं, CPAC पाकिस्तान की मईशत के लिए
बहुत मुफीद ये मंसूबा था और है। और आप देखेंगे सी पैक से पहले मियां नवाज शरीफ ने अपने पहले अदवार में 1990 का उनका दौर देखें, पाकिस्तान की जो इकॉनमी को जो लिबरल किया गया, आज़ाद किया गया, किसने किया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और हमारी जो करेंसी को बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ किसने जोड़ा? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 90 की दिहाई में। और आपको याद होगा कि इंडिया ने उस जमाने में उसको अडॉप्ट किया, बल्कि पब्लिकली उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक जो पाकिस्तान का विजन उसको फॉलो कर रहे हैं। और आपको याद होगा उसको पाकिस्तानी रुपए की कदर हिंदुस्तान के रुपए की कदर से ज्यादा थी और कई महाजों में पाकिस्तान आगे था। बाकी उसके बाद पाकिस्तान को नजर लग गई। तो मैं समझता हूँ कि सी पैक यकीनन हमारी तरक्की और खुशहाली में मोहम्मद मामिन साबित हुआ है और होगा। अब उसकी शक्ल और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो अब बदल जाएगा। अब इंडस्ट्रियल स्टेट्स हमने बनानी है मिलकर, हमने जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स करनी है और ये सारे पाकिस्तान के अंदर सिंध में, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में हमने जॉइंट वेंचर्स लेके आने हैं और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को उनको हमने फ़रोग देना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। सी पैक की नौयत पीछे पहले और थी, अब और हो। ग्वादर का सर, गवादर आप देखिए, गवादर हमारी जो सेकंड पोर्ट है उसकी डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए एक लाज़म मलज़ूम है, एक प्री कंडीशन है। और उसके लिए 16 माह में गवादर की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी हुकूमत ने जो एफर्ट्स किए हैं वो खुद आपके पास उसके सबूत आपके पास है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई वज़ीर आज़म 16 माह में गवादर इतनी मरतबा गया होगा जितना मैं गया हूँ। ये नाचीज़ वो क्यों? ताकि बलूचिस्तान के गवादर के अवाम के लिए वो पोर्ट जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च हुए हैं बंद पड़ी थी और मट्टी की तह में समंदर में जम गई थी, बड़े जहाज आ नहीं सकते थे। हमने दोबारा वहाँ पर बाहर से जो गंदम, फर्टिलाइज़र और दूसरे इम्पोर्टेड जो सामान है वो गवादर मंगवाए और हमारी अफसरशाही कहती थी कि जी गवादर आता है, सामान उतरता है, उसके बाद अप कंट्री के लिए जो फ्रेट चार्जेस बहुत पड़ते हैं, कराची बेहतर। ये माफिया, ये वो माफिया है जो नहीं चाहता कि कराची पोर्ट जो ये गवादर पोर्ट जो है वो बढ़े। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर एडिशनल फ्रेट पड़ता है हम देंगे, गवादर पोर्ट को हम दोबारा चालू करें और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल हुई। लीग पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं, उस वक्त सर्वे जो थे वोटर्स के हवाले से वो कुछ और बता रहे थे। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबी तैयारियां भी कर रही है, लेकिन इतनी उसमें एतमाद है कि आप माशी माहरीन से मीटिंग्स भी कर रहे हैं कि आपको हुकूमत में आने का इतना यकीन है। तो ये यकीन इतना कैसे हो गया है कि हुकूमत में आप नहीं आना है? और इसके साथ चेयरमैन आपको किसने कह दिया कि हमें यकीन? सर अगर अल्लाह ताला ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा है कि आपको 8 फरवरी को एक सरप्राइज मिलेगा, तो कोई सरप्राइज मिलने की कोई बंदोबस्त किया हुआ आपने? माशी माहरीन से मीटिंग करना क्या इस बात की गारंटी कि हमें हुकूमत मिल जाएगी? हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हमें तैयार रहना चाहिए। ये है मकसद उसका। We will give them a surprise इंशाल्लाह। अब तो कहा जा रहा है कि जेल से रोने की आवाजें भी आ रही हैं। आप तो कभी जेल में रोए नहीं थे, तो जब इक़्तिदार में आप आ जाएंगे उन्हें आम माफी का ऐलान कर देंगे इमरान खान के लिए? अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें से माफ़ी हम सबको मांगनी चाहिए। मैंने गुजारिश कर दी कि हमने तो कभी नहीं कहा था, नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा था, मैंने कभी नहीं कहा था कि हम इनको गर्दन से पकड़ेंगे, इनको उल्टा लटकाएंगे, इनको अपना सड़कों पे घसीटेंगे या रोएंगे, मैं इनको रुलाऊंगा। ये तो नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा था, ना हमने अपना कभी इसका सोचा भी, कहना तो दूर की बात है। अल्लाह ताला से हमें रहम मांगना चाहिए, मग़फ़िरत मांगनी चाहिए और इस मुल्क के अवाम पर अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। मुल्क में इतने मसाइल हैं कि अब मियाँ साहब की तरफ हर शख्स देख रहा है और मियाँ साहब ने इन मसाइल को हल भी करना है। इस वक्त आपका नारा भी है कि पाकिस्तान को नवाज दो। मियाँ नवाज शरीफ को जब भी मुल्क मिलता है मसाइल की, अल्लाह ताला नारा नहीं, दुआ है हम सब की, अल्लाह ताला मेहरबानी कर दे और पाकिस्तान को नवाज दो। जब भी मसाइल नहीं है, दुआ है, दुआ। जब भी मसाइल आती हैं तो ये दुआ आती है और मियाँ साहब को पाकिस्तान मिलता है बुरी हालात में, फिर वो बेहतर करते हैं। तो कुछ बैरूनी और कुछ अंदरूनी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं
کہ پاکستان ترقی نہ کرے, جیسے ایک سب قانونی بن کے رہے, کیا وہ قوتیں کبھی ختم ہو سکتی ہیں, خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں, ملک اچھا چلتا رہے تاکہ ہم کل کو پاکستان دے کے جائیں؟ بس اٹس آل اپ ٹو اس. یہ ہم پر یہ منحصر ہے. سختیاں آتی ہیں, اپنا اونچائی بھی آتی ہے, ڈھلان بھی آتی ہے, کبھی برا وقت آتا ہے, کبھی اچھا وقت آتا ہے. بڑے تحمل برداشت کے ساتھ 25 کروڑ عوام کی اگر ہم ان کو سامنے رکھ لیں کہ ان کی خاطر ہم نے ہر چیز کرنی ہے, محنت بھی کرنی ہے, صبر بھی کرنا ہے, تحمل بھی اختیار کرنا ہے, تو یقین کریں کہ پہاڑ نما